آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے متعلق اہانت آمیز بیان پر ملک بھر احتجاج کا سلسلہ جاری۔ شہر کے کرانتی چوک پر شیو سینا ادھو گروپ نے کیا زوردار آندولن۔ جالنہ میں بھی VBA نے ضلع کلکٹریٹ پر کیا احتجاج۔ پربھنی واقعے اور امبیڈکری نوجوان سوریہ ونشی کی حراستی موت پر امبیڈکری سماج نے کیا پیٹھن میں زوردار احتجاج۔ سکل امبیڈکری اور سکل وڈار سماج نے کیا آئندہ روز جالنہ بند کا اعلان۔ جگن ماتا تقریری مقابلے ثابت ہو رہے ہیں نوجوان نسل میں صلاحیتوں کے فروغ کے ضامن۔ تقسیم انعامات کی تقریب میں ماہر علمی شخصیات نے کیا اظہار خیال۔ اور تعلقہ پیٹھن کے مضافات سومپوریہ میں زمین کے تنازع پر خوریز لڑائی، کوئتے و دیگر ہتھیاروں کا آزادانہ استعمال، کئی افراد زخمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر کے کرانتی چوک میں وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف ادھو بالا صاحب ٹھاکرے شیو سینا کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ عیان ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پارلیمنٹ میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے حوالے سے جو بیان دیا اس کے خلاف پورے بھارت میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے گروپ کی جانب سے سینئر رہنما چندرکانت کھیرے کی قیادت میں کرانتی چوک میں شدید احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر چندرکانت کھیرے نے انتباہ دیا کہ اگر شاہ صرف استعفیٰ ہی نہیں بلکہ معافی مانگ کر استعفیٰ نہیں دیتے تو آگے یہ تحریک مزید شدید شکل اختیار کرے گی۔ ज्या पद्धतीने अमित शाह यांनी त्यांचा असं बोलून घोर अपमानच केला, त्या अपमानाच्या निषेधार्थ शिवसेना संभाजीनगरच्या वतीने आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी याचा निषेध व्यक्त करतो आहोत। अमित शहाचा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचं हे आंदोलन सगळ्या ठिकाणी चालू आहे आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगेल की अमित शाह यांनी माफी मागितली पाहिजे, राजीनामा दिला पाहिजे। माफी मागून राजीनामा दिला पाहिजे। त्याचं कारण असं आहे की थोर घटनाकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या पद्धतीने आज बद्धदलित गोरगरीब जनता संपूर्ण हिंदुस्थानातील नागरिक सर्व धर्मीयांना जी घटना लिहिली त्या घटनेचा हा अपमान झालेला आहे, संविधानाचा अपमान झालेला आहे। जालना में वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाज किया गया और वजीर दाखिला अमित शाह की शदीद मजम्मत की गई। مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے بارے میں کیے گئے مبینہ بیان پر ونچت بہوجن اگھاڑی کی جانب سے امت شاہ کے خلاف کلکٹر دفتر کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ ونچت بہوجن اگھاڑی کے ضلع صدر ڈیوڈ گھومارے کی قیادت میں یہ احتجاج کیا گیا۔ عیان ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے حوالے سے دیا گیا مبینہ بیان اس وقت ملک بھر میں متنازع بن چکا ہے۔ اس بیان کے بعد ملک بھر میں امبیڈکری تحریک کی طرف سے امت شاہ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ونچت بہوجن اگھاڑی کی جانب سے آج ضلع کلکٹر آفس کے سامنے امت شاہ کے خلاف ہوئے اس احتجاج میں بڑی تعداد میں مذکورہ आघाडी के عہدیداران و कारकुनान मौजूद थे। संसदेमध्ये अमित शाह गृहमंत्री देशाचे यांनी जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधामध्ये त्या ठिकाणी भूमिका घेतली आणि इतक्या वेळेला तुम्ही आंबेडकरांचं नाव घेतल्यानंतर तुम्ही जर देवाचं नाव घेतलं असतं तर स्वर्गात गेले असते। म्हणजे अवहेलनात्मक त्या ठिकाणी आंबेडकरांच्या संदर्भामध्ये वक्तव्य केलं, त्यासाठी त्या गृहमंत्र्याचा निषेध करायला आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। आम्ही या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांचा निषेध करतो। या देशाला ज्यांनी संविधान दिलं, ज्यांनी या देशाला अस्मिता दिली, ज्यांनी गोरगरीब कष्टकरी दीन दलित ओबीसी यांना सन्मान दिला, मान दिला, हा यांच्या पक्षाला आणि यांच्या धोरणाला पटत नसल्यामुळे याने दोषाच्या भावनेतून आंबेडकरांवर त्या ठिकाणी आरोप केलेले आहेत। आणि म्हणून ज्या संसदेमध्ये हे बसलेले आहेत त्याचे निर्माण करतच आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत आणि त्यांनी जे अवहेलना केलेली आहे त्याचा आम्ही धिक्कार करतो। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खराद ग्रुप की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करने वाले वजीर दाखिला अमित शाह की स्वर्गवारी के लिए पोस्ट के जरिए अलामती भैंसा भेजा गया। इस सिलसिले में मज़कूरा पार्टी RPI के जारी किए गए बयान में कहा गया कि BJP के इक़्तिदार में आने के बाद से भारतीय आइन को तब्दील करने की बातें की जा रही हैं।
دہلی کے جنتر منتر پر آئین کو جلانے کے معاملے میں بی جے پی خاموش ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے مطابق ہی انہیں سورگ کی یاترا کے لیے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے علامتی بھیسا سڈکو N7 کے پوسٹ آفس سے دہلی کے دفتر بھیجا گیا ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے ضلع صدر منیش نروڑے، آدتیہ واہول، یوگیش اباڑے، گنیش سالوے، منوج شیجوڑ، کرن ٹھومرے اور راجیش جادھو موجود تھے۔ काल देशाचे गृहमंत्री अमित जी शाह यांनी संसदेमध्ये एक वक्तव्य केलं की आंबेडकर नाव घेणं हे एक फॅशन झालेली आहे आणि पुढे जाऊन त्यांनी एक वक्तव्य केलं की एवढंच जर नाव देवाचं घेतलं तर स्वर्गप्राप्ती होती। त्याचाच निषेध म्हणून आम्ही त्यांना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचिन खरात गटाच्या वतीने प्रतिकात्मक रेडा त्यांना आम्ही पोस्टाद्वारे त्यांच्या दिल्ली कार्यालय येथे पाठवत आहोत आणि त्यांना आम्ही त्या रेड्यावर बसून स्वर्गवारी करण्याचं त्यांना आम्ही सांगत आहोत की आपण या रेड्यावर बसून स्वर्गवारी करून यावा आणि त्यांचा अनुभव कसा होता, त्यांना स्वर्ग कसा वाटला, त्यांनी स्वर्गामध्ये त्यांना काही अडचणी आल्या तर नाही ना, या त्यांनी सर्व ज्या वारी त्यांनी करून आल्यानंतर आम्हाला स्पष्ट करावं, या देशाला सुद्धा सांगावं की स्वर्गामध्ये अशा अशा घटना माझ्यासोबत घडल्या। आणि आताच परभणीमध्ये देशाचं संविधानाची प्रतिकृती एका सोपान पवार नावाच्या व्यक्तीने तोडलेली आहे आणि त्याला भाजपने आणि येथील प्रशासनाने मनोरुग्ण म्हणून त्याला घोषित केलं। मग जर मनोरुग्ण या देशाच्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची तोडफोड करत असेल तर मग अमित शहांना पण आपण मनोरुग्ण म्हणणार आहात का? आणि जर ते मनोरुग्ण असतील तर त्यांना या गृहमंत्री पदावर बसण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही। सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में हुई मौत मामले को लेकर पैठन में अम्बेडकरी बिरादरी की जानिब से धरना आंदोलन किया गया। परभनी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे से मुत्तसिल इलाके में भारतीय आइन की नकल की बेहुरमती और पुलिस हिरासत में फौत होने वाले सोमनाथ वेंकट सूर्यवंशी की मौत के खिलाफ जुमा के रोज अम्बेडकरी समाज की जानिब से तहसील दफ्तर के सामने जोरदार धरना आंदोलन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अम्बेडकरी जनता एहतजाज में शरीक हुई। इस एहतजाज में खवातीन भी शामिल थीं। इस मौके पर हुकूमत और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। मज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फौत होने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी और संतोष देशमुख को बहीमाना तौर पर मारा गया और उन्हें कत्ल किया गया, चुनांचे कातिलों को फांसी दी जानी चाहिए। ऐसी मांग भी एहतजाजियों ने। इस दौरान पैठन के पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख की रहनुमाई में बड़ी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। आज महाराष्ट्रामध्ये आपल्या परभणी ह्या ठिकाणी जी दुर्दैवी घटना घडलेली त्या ठिकाणी एक माथे फिरू जे जबाबदार व्यक्ती म्हणतात की तो माथे फिरू होता, पण 9 तारखेला त्या ठिकाणी RSSच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मोर्चे काढण्यात आले, लोकांचे माथे भडकवण्यात आले आणि त्याच माध्यमातून त्या ठिकाणी ते पवार नावाच्या व्यक्तीने संविधानाची विटंबना केल्यानंतर त्या ठिकाणी जो बहुजन समाज आहे, दलित समाज आहे, तो रस्त्यावर उतरला आणि त्यांनी काही ठिकाणी तोडफोड केली। पण नंतर पोलिसवाल्यांनी वैयक्तिक दुश्मनी असल्यासारखं व कुठल्या राजकीय लोकांचं ऐकून आमचे जे उच्च शिक्षक मुलगा त्याचा कुठल्या दादागिरीशी किंवा राजकारणाशी किंवा 2 नंबरच्या कुठल्या गुन्ह्याशी काही संबंध नसताना त्याची निर्गुणपणे त्याची हत्या पोलिसवाल्यांनी करण्यात। परभनी वाक़े के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कल जालना जिला बंद का ऐलान किया गया है। परभनी वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए कल सकल अम्बेडकरी समाज और सकल वडार समाज की जानिब से जालना जिला बंद का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के तहत जालना ज़रई पैदावार मार्केट कमेटी के तमाम लेन देन भी बंद रहेंगे। इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वह कल अपनी ज़रई अजनास व पैदावार फरोख्त के लिए न लाएं। यह अपील मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने एक प्रेस रिलीज के जरिए की है। दरिया असना कल के जालना बंद के बैनर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए देखे गए हैं। DYSP साहेबांना आम्ही सगळ्यांनी मिळून वडार समाजाचे बंधू आणि आपले आंबेडकर समाजाचे बंधू आम्ही सर्वांनी निवेदन दिलं आणि आम्हाला पोलीस प्रशासनामार्फत DYSP कुलकर्णी साहेब यांनी सांगितलं की बाबा तुम्ही बंद करा, शांततेच्या मार्गाने करा। म्हणजे याचा अर्थ आम्हाला इंडायरेक्टली त्या ठिकाणी परमिशन भेटलेली आहे आणि मी सुद्धा सर्वांच्या वतीने या ठिकाणी ग्वाही देतो पोलीस प्रशासनाला की अतिशय लोकशाही पद्धतीने शांततेच्या मार्गाने आम्ही जालना जिल्हा बंद करून परभणीच्या घटनेचा आणि जे आमचे बंधू वडार समाजाचे सोमनाथ सूर्यवंशी त्या ठिकाणी त्यांचं हत्याकांड घडलं त्यांच्या निषेधार्थ जालन्याचा खूप मोठा या ठिकाणी बंद करून आम्ही आमच्या मागण्या प्रशासनाला मंजूर करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव त्या ठिकाणी टाकणार आहोत। धन्यवाद। जगन माता शारदा तकरीरी मुकाबले की तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद अमल में आया। अयार है कि जगन माता शारदा तकरीरी मुकाबले के ज़रिए
गुज़िश्ता 30 सालों से बेहतरीन तकरीरी मौज़ूआत पर बात करने वाली नस्ल तैयार की जा रही है। तलबा अग्निहोत्रा और मुख्तलिफ सकाफ़ती मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसके ज़रिए उनकी शख्सियत में तरक्की हो रही है और ये काम दुनिया भर में जारी रहना चाहिए। इस तरह के ख्यालात डॉक्टर परशोत्तम जी राजीम वाले सदर विश्वा फाउंडेशन ने जाहिर किए। वो जगन माता शारदा तकरीरी मुकाबले की तकसीम इनामात की तकरीब में खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में रामदेव दादा चौधरी धामनगांवकर और अमर दादा चौधरी धामनगांवकर भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज डॉक्टर परशोत्तम महाराज के हाथों हुआ। तकरीब का तारुफ प्रोग्राम के मुंतजिम SP जवड़कर ने पेश किया। इन मुकाबलों में इस साल मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों से कुल 400 तलबा ने शिरकत की, जिनमें मराठी मीडियम के 5वीं से 7वीं जमात के तलबा में पहला इनाम विवेक चांदुवाडकर, दूसरा इनाम तेजस्वनी संदीप वरोडकर, तीसरा इनाम संस्कृति नीलेश अकलकर ने हासिल किए, जबकि खुसूसी इनामात श्री रूप गणेश जनगम, उद्यत अदय गाडगल, रणवीर बाला साहब मस्के को दिए गए। इसी तरह 8वीं से 10वीं जमात के ग्रुप में पहला इनाम आराधना अमित देशमुख, दूसरा इनाम प्रसाद राजेंद्र काकड़े और तीसरा इनाम नरगोश प्रमोद झाल्टे को हासिल हुआ। अंग्रेजी मीडियम के 5वीं से 7वीं जमात के शरीके मुकाबला तलबा तालिबात में पहला इनाम सिनाई करण जवड़कर, दूसरा इनाम माधवी साईनाथ चेडीदार ने लिए। 8वीं से 10वीं जमात के ग्रुप में पहला इनाम प्रसाद किरण जवड़कर, दूसरा इनाम स्नेहल केशव कथाड़े। जूनियर कॉलेज ग्रुप में पहला इनाम वेदिका सूर्यकांत पाथारकर, सीनियर कॉलेज ग्रुप में पहला इनाम साक्षी राहुल बागल ने हासिल किया। इन इनामात में पहला इनाम जगन माता शारदा एजाज सर्टिफिकेट और 1111 रुपये नकद, दूसरा इनाम 501 रुपये नकद, तीसरा इनाम 351 रुपये नकद दिए गए। तकसीम इनामात तकरीब के कामयाब इनेकाद के लिए तमाम मुंतजिमीन ने अनथक मेहनत की। एक शिक्षण संस्था आणि त्या माध्यमातून संस्कार वर्ग एक गुरुकुलच सुरू करवलं, तसं मला वाटतं बाबांनी त्यांच्या आईंच्या स्मृतीमध्ये जर काही सुरू केलं असेल तरी वक्तृत्व स्पर्धा आहे। आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजावरती सकारात्मक संस्कार घडावे यासाठी हे सुरू केलेलं गुरुकुलच आहे। म्हणजे आज जवळकर सरांना मी नेहमी म्हणतो की आपण लौकिक अर्थाने शाळा चालवतो, आपण लौकिक अर्थाने शिक्षक आहात, आपण इतर शिक्षकांना बरोबर घेतो, शैक्षणिक संस्थेचं आपण सगळे जे काही सरकारी मापदंड आहे ते पूर्ण करतो, पण खऱ्या अर्थाने ह्या सगळ्या शाळा ज्या आहेत त्या 3-4 शाळांचं नाव सरांनी घेतलं। आपल्या अक्कलकोटच्या शाळा असतील, सोनामाता कन्यापर शाळा असेल, या 10-12 ज्या काही आपल्या अग्निहोत्र पद्धतीने चालणाऱ्या शाळा ज्या आहेत या खरोखरी काय आहेत, त्या गुरुकुलच आहेत। ज्या प्राचीन काळामध्ये ऋषी आपल्या आश्रमामध्ये गुरुकुल चालवत असत त्या स्वरूपाच्या या गुरुकुल आहेत। आणि ह्या माध्यमातून करतोय काय आपण, तर समाजाला एक नवी दिशा, एक नवी ऊर्जा द्यावी हाच प्रयत्न आहे। आज वक्तृत्व स्पर्धा जरी असली ती स्पर्धा आहे, त्याच्यामध्ये भाग आपण घ्याल, आपण कोणी जिंकेल, कोणी हरेल, कोणी बक्षिसं घेईल, कोणी बक्षिसं नाही घेणार। मुद्दा बक्षिसांचा नाही आहे, मुद्दा तो झालेल्या संस्काराचा आहे। म्हणजे मला आठवतं, मी सरांना नेहमी आठवण करून देतो की मी सरांचा विद्यार्थी आहे आणि आपल्यासारखं मी देखील या रांगांमध्ये कधी बसायचो आणि सरांकडे शिकवणीला जायचो। आज माझी मुलगी पुढच्या वर्षी 10वीला जाणार आहे, तर पहिल्यांदा तिने आणि माझ्या बायकोने काय विचारणा केली की सरांना विचारा की सरांचे वर्ग समर क्लासेस कधी आहेत, मुलीला पाठवायचं आहे। शारदा माता ज्यांनी आम्ही 30 वर्ष ही सेवा करण्याची मोलीत संधी दिली, ज्याने पहिल्या वर्षी आम्हाला भरभरून आशीर्वाद दिला आणि सांगितलं की तुम्ही या शहरामध्ये असे बालवक्ते घडवा की जे अग्निहोत्रावर बोलले पाहिजेत, संस्कारावर बोलले पाहिजेत, राष्ट्रभक्तीवर बोलले पाहिजेत। असे पूजनीय श्रीकांत महाराज यांनाही विनम्र अभिवादन। आज मी तिला पहिल्या वर्षी तुषार मला असं वाटत होतं की या स्पर्धेच्या किती बातम्या येतील, काय होतील, पण तुम्ही सगळी पत्रकार मंडळी शहरातली एवढं भरभरून प्रतिसाद देतात की आम्हालाच असं वाटतं की एक काळे ही स्पर्धा कधी सुरू झाली होती आणि किती उंचीवर गेली। आज ज्यांच्या शुभकर कल्पना कमलाने हे बक्षीस वितरण होणार आहे, ते आम्हा सर्वांचे आदरणीय वंदनीय आमच्या हृदयातील दादा, ज्यांनी आपल्या आयुर्वेदाच्या शिक्षणामध्ये गोल्ड मेडल मिळवलं, जगभर शांतीचा, सद्भावनेचा, मनशांतीचा श्रीजींनी दाखवलेला महामार्ग मोठा रुंद केला आणि आपल्या वाणीने सर्व जगभरातल्या लोकांना एक वेगळी ताकद दिली, जगण्याचा उत्तम मार्ग दाखवला। ते डॉक्टर पुरुषोत्तमजी राजेमले अर्थात आमचे दादा
महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ के 6 साला इजलास का आगाज आलंदी में अमल में आया। आया रहे कि महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ का ये 10वां 6 साला इजलास 20 से 22 दिसंबर तक आलंदी में फ्रूट वाला धर्मशाला के हॉल में मुनक्किद हो रहा है। इजलास का इफ्तिताह जुमा को सुबह 11 बजे रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी आभा शुक्ला करेंगी, जबकि महानिर्मी, महापारेषण और महावितरण कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर खुसूसी मेहमान होंगे। भारतीय मजदूर संघ के मगरबी जोन के इंचार्ज सीवी राजेश, महाराष्ट्र प्रदेश के सदर अनिल धोमने, महामंत्री किरण मिलगीर और ऑल इंडिया विद्युत मजदूर महासंघ के सदर मधुसूदन जोशी व महामंत्री किशोर लाल रायकवार इजलास में अहम रहनुमाई करेंगे। विजय मुलगंद और सुभाष साहू की रहनुमाई में इजलास के सदर विजय हिंगमीरे और उनकी टीम इजलास के इंतजामात में सरगर्म है। वाज़ेह हो कि रियासती बिजली बोर्ड की तकसीम के 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इजलास में तफसील से इस पर बहस होगी कि तकसीम फ़ायदामंद है या मुत्तहदा बिजली बोर्ड का तस्वुर बेहतर है। इसके अलावा अंधाधुंध नजीकारी के खिलाफ एहतजाज, हाइड्रो पावर प्लांट्स की मुंतकिली के खिलाफ पॉलिसी, ठेके पर काम करने वाले मुलाजिमीन की मुस्तकिल मुलाजमत, स्मार्ट मीटर्स पर तंजीम का मौक़िफ़, महापारेषण में नजीकारी के मामलात, सोलर एनर्जी के बारे में पॉलिसी, महावितरण के मौजूदा तंजीम नौ के जरिए मुलाजिमीन की तादाद कम करने की तजावीज़ और दीगर मसाइल पर भी बहस होगी और करारदादें पास की जाएंगी। साथ ही तंजीमी प्रोग्राम, आइंदा 3 सालों के लिए ओहदेदारों का इंतखाब और ख़वातीन के लिए खुसूसी इजलास इस इजलास के नुमाया पहलू होंगे। ये मालूमात महासंघ के सदर विट्ठल भाले राव और महामंत्री अरुण पीवाल ने फराहम की हैं। औरंगाबाद मशरिक़ के असम्बली उम्मीदवार और MIM के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने ज़ाब्ता अखलाक सेल में की गई शिकायत की मुताल्लिक़ा कमेटी के ज़रिए तहक़ीक़ात व समाअत के बाद इस शिकायत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट ज़ाब्ता अखलाक सेल के सरबराह डॉक्टर विकास मीना ने ज़िला कलेक्टर के हवाले कर दी है। वाज़ेह हो कि औरंगाबाद मशरिक़ असम्बली हल्के में कुछ लोगों के जरिए आधार कार्ड जमा करके पैसे तकसीम करने की शिकायत उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने ज़ाब्ता अखलाक सेल में दर्ज कराई। इस शिकायत के साथ कुछ वीडियोज़ और तस्वीर भी पेश की गई थीं। शिकायत के बाद एडिशनल जिला कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे, क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत स्वामी और औरंगाबाद मशरिक़ के इलेक्शन ऑफिसर चेतन गुरासे पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई थी और इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर विलास मीना को सौंपी थी। डॉक्टर मीना के सेल में शिकायत कुनिंदा इम्तियाज़ जलील की मौजूदगी में समाअत हुई और अब शिकायत के तनाजुर में ज़ाब्ता अखलाक सेल की मुश्तरका रिपोर्ट जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हवाले कर दी गई, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि वीडियोज से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी वाज़े तौर पर साबित नहीं होती है। शहर की ज़राई पैदावार बाजार समिति का स्क्वाड यहाँ से नाजायज़ कब्जे को हटाने के लिए पुलिस बंदोबस्त के साथ पहुँचा तो कब्जेदार गुंजाल ख़ानदान के अफराद ने खुद पर डीजल उंडेल लिया। वाज़ेह हो कि ज़रई पैदावार बाजार समिति की ज़मीन के तनाज़े ने दोबारा जोर पकड़ लिया है। जादववाड़ी में बाजार समिति के सर्वे नंबर 8 की 3 हेक्टर 15 आर ज़मीन का तनाज़ा एक बार फिर उस वक्त बढ़ गया जब वहां मौजूद कब्जे को हटाने के लिए बाजार समिति की टीम और पुलिस मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद मुबैना असल मालिक कैलाश गंजाल और उनके ख़ानदान ने अपने जिस्म पर डीजल उंडेल लिया और खुद सोजी की कोशिश की, जिसकी वजह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ी। आया रहे कि पीसा देवी रोड पर बड़े गेट के साथ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है और उसके पीछे जनरल किराना मार्केट के लिए ताजिरों को प्लॉट्स दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए पुलिस बंदोबस्त के साथ बाजार समिति ने JCB की मदद से तजावुजात हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान कांटेदार दरख्तों को काटने और जमीन को हमवार करने का काम किया जा रहा था। तभी वहां के रिहायशी कैलाश गंजाल ने इस कार्रवाई की मुखालिफत की और पुलिस से सवाल किया कि जब ये मामला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है तो हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। इसके बाद गंजाल खानदान ने अपने जिस्म पर डीजल उंडेल लिया, जिसकी वजह से ज़रई पैदावार बाजार समिति के स्क्वाड ने कार्रवाई रोक दी। हालांकि इस मामले में मुताल्लिका सिडको पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। कब्जेदार कैलाश गंजाल ने कहा कि ये जमीन ज़रई पैदावार बाजार समिति की नहीं बल्कि जाधववाड़ी के सर्वे नंबर 8 की ये 3 हेक्टर 15 आर जमीन हमारी मिल्कियत है, लेकिन बाजार समिति इसे अतिक्रमण करार देकर हमारे घर, दरख्त और गोठे तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये मामला दीवानी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। गंजाल ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़रई पैदावार बाजार समिति ने हमारी ज़मीन पर कब्जा करके ही मौजूदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया है। माझी जमीन 87 मध्ये आवार झाली, 3 हेक्टर 15 आर। त्याच्यानंतर 90 मध्ये वडील पेमेंट घ्यायला गेले कलेक्टर साहेबाकडे। कलेक्टर साहेबांनी 90 मध्ये 4 एकर 1 गुंठ्याचं पेमेंट दिलं आणि 99 मध्ये प्रमाणपत्र दिलं, बाबा जितके पैसे दिलेले आहे तितकेच जमीन तुझी संपन्न झाली। मग माझी 3 एकर 34 जागा गुंठे गेली कुठं? ते कोर्टाचा निकाल 2016चा निकाल सिव्हिल कोर्टात निकाल माझ्या बाजूला लागलेला आहे।
डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने उशिरा गेले. डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचं त्यांचं फेटाळलेलं आहे. हायकोर्टाने थेटस्को दिलेला आहे 2019 मध्ये. यांनी बंदोबस्त घेऊन आतापर्यंत बांधकाम चालू केलं आहे. ते कोर्टाचा सुद्धा अपमान केलेला आहे यांनी. या पठाडे साहेबांनी राजकीय दबाव वापरून बंदोबस्त घेतलेला आहे. बंदोबस्त ज्या जागेवर घेतात आणि काम दुसऱ्या जागेवर करतात. आणि आपण सांगून गेलो पोलीस साहेबांना, पोलीस म्हणतात तुम्ही कोर्टावर एसटी आणा. थेटस्को असताना तुम्ही सुद्धा काम थांबलेले, तुम्ही आता एसटी आणू कुठून? राधाकिशन पठाडे सभापती यांनी 88 कोटीचा घोटाळा केला, पण आता माझ्या जागेवर भी हे करताय, हुकुमशाही केलेली यांनी. नागपुर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए खुसूसी लेक्चर का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सहाफ़त को रियल टाइम बनाने के लिए AI का मौसर इस्तेमाल ज़रूरी बतलाया गया। ज़राए इब्लाग में काम करने वाले हर फ़र्द को ज़्यादा मालूमाती व बासलाहियत बनने के लिए मस्नूई ज़हानत यानी AI ने एक नया रास्ता फ्राहम किया है। मादरी ज़ुबान में हासिल होने वाले इल्म की जो हदूद थीं वो अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई हैं। अब जिस भी ज़ुबान में मालूमात चाहिए वो आसानी से फ़राहम हो सकती है। लिहाजा मस्नूई ज़हानत से दूर रहने के बजाय इस टेक्नोलॉजी को समझना और अपने इस्तेमाल से इसे मज़ीद मुकम्मल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इन ख़यालात का इज़हार महकमा इत्तलाआत व ताल्लुकात आम्मा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल बरजेश सिंह ने नागपुर प्रेस क्लब और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस नागपुर ऑफिस के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा सहाफ़त में मस्नूई ज़हानत के मौजू पर प्रोग्राम में किया। सीनियर सहाफ़ी और साबिक़ रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर राहुल पांडे प्रोग्राम की सदारत कर रहे थे। तकरीब में नागपुर प्रेस क्लब के सदर प्रदीप मैत्र, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के नागपुर अमरावती डिवीज़न के डायरेक्टर डॉक्टर गणेश मोले, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन किशोर गांगोरडे, दयानंद कामले मौजूद। इस मौके पर बरजिश सिंह ने कहा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मुलाजमतों में कमी का खदशा जाहिर किया जाता है, लेकिन अब तक ये देखा गया है कि टेक्नोलॉजी ने नई राहें पैदा की हैं। मसनूई ज़हानत के मामले में भी यही खौफ पाया जाता है। अगर इसका मौसर इस्तेमाल न किया जाए तो मुताल्लिका अफराद को अपनी मुलाजमत खोने का खदशा रहता है। उन्होंने कहा कि AI के ज़रिए हासिल करदा मालूमात को जांचना, उसमें मौजूद खामियों को दुरुस्त करना, अखलाकी और आइनी नुक्ते नज़र से उसका जायज़ा लेना और गलतियों को दुरुस्त करना हर फर्द की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों के लिए इंतबाह का इजहार करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि आज सोशल मीडिया का लोगों पर ज़बरदस्त असर है, लेकिन इसमें कई ख़तरात भी हैं। अगर कोई शख्स मोबाइल पर मौसूल होने वाली गलत मालूमात का शिकार हो जाता है तो वो माली धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। लिहाजा हमें इन ख़तरात के ख़िलाफ़ चौकस रहना होगा और मसनूई ज़हानत को एक ज़िम्मेदाराना अंदाज में अपनाना होगा। सदारती खिताब में राहुल पांडे ने कहा कि सहाफ़त में मौजूदा महारत के साथ साथ मसनूई ज़हानत का दुरुस्त इस्तेमाल भी ज़रूरी है। भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल न हो, इसके लिए मकामी ज़रूरियात के मुताबिक AI का ढांचा तैयार करना होगा। मराठी ज़ुबान को भी मसनूई ज़हानत के साथ मरबूत करना होगा। प्रोग्राम का आगाज़ नागपुर प्रेस क्लब के सदर प्रदीप मैत्र ने किया, निज़ामत डॉक्टर गणेश मोले ने की, जबकि शुक्रिया दयानंद कामले ने अदा किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मीडिया इदारों के सहाफ़ी, इत्तलाआत और ताल्लुकात आम्मा के अफसरान मौजूद थे। रियासत के मुख्तलिफ अज़ला के इत्तलाआती दफातर और सहाफ़त के इदारों ने ऑनलाइन तरीके से इस लेक्चर से इस्तेफ़ादा किया। शहर में पंचायत समिति के सामने एक तेज़ रफ्तार थार गाड़ी हादसे का शिकार होकर फिल्मी अंदाज में हवा में उड़कर डिवाइडर से जा टकराई। तेज़ रफ्तार से दौड़ने वाली ये थार 4 व्हीलर MH20 GQ 3355 जिला कलेक्टर ऑफिस की जानिब से तेज़ रफ्तार में आ रही थी। इसी असना ड्राइवर का गाड़ी पर से काबू टूट गया, जिसकी वजह से गाड़ी उछलकर हवा में उड़ती हुई डिवाइडर पर लगाई गई लोहे की सलाखों पर जाकर अटक गई। यह मंजर किसी फिल्म के सीन की तरह था। गाड़ी के टकराने पर जोरदार आवाज़ हुई, जिससे वहां मौजूद लोग फौरन जाए हादसा की तरफ दौड़े। मकामी लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी से निकाला और क्रेन के जरिए गाड़ी को वहां से निकालकर सड़क के किनारे हटाया। खुशकिस्मती से ड्राइवर महफूज रहा और बाद में अपनी गाड़ी को खुद चलाकर ले गया। आया है कि इस मकाम पर सड़क का एक पेचीदा मोड़ होने की वजह से ड्राइवर अक्सर रास्ते का अंदाजा नहीं कर पाते, जिसके बाइस यहाँ हादसात आम हैं। इस हादसे में भी चूंकि गाड़ी सामने मौजूद डिवाइडर की वजह से सड़क की दूसरी तरफ नहीं गई, वरना एक बड़ा हादसा भी मुतवक्किल था। पैठन ताल्लुक़े के बिड़किन पुलिस थाना की हुदूद में वाक़े मज़ाफ़ात सोमपुरी गांव में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद मारपीट का वाक़या पेश आया, जिसमें कई अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। इस सिलसिले में मिली मालूमात के मुताबिक पिछले 15 सालों से यहाँ इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जमीन का तनाज़ा जारी है। इसी तनाज़े को लेकर बिड़किन के कल्याण नगर रोड पर तलवार, कोयता और लोहे की रॉड से इन दोनों गिरोहों में मारपीट का यह संगीन मामला पेश आया और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस झड़प में
3 से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए शहर के अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने दी इत्तला के मुताबिक अभी तक दोनों ग्रुपों की जानिब से कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक इहानत आमेज बयान पर मुल्क भर एहतजाज का सिलसिला जारी। शहर के क्रांति चौक पर शिवसेना उद्धव ग्रुप ने किया जोरदार आंदोलन। जालना में भी VBA ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया एहतजाज। परभनी वाक़े और अम्बेडकरी नौजवान सूर्यवंशी की हिरासती मौत पर अम्बेडकरी समाज ने किया पैठन में जोरदार एहतजाज। सकल अम्बेडकरी और सकल वडार समाज ने किया आइंदा रोज जालना बंद का ऐलान। जगन माता तकरीरी मुकाबले साबित हो रहे हैं नौजवान नस्ल में सलाहियतों के फरोग के जामिन। तकसीम इनामात की तकरीब में माहिर इल्मी शख्सियात ने किया इजहार ख्याल। और ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात सोमपुरी में ज़मीन के तनाज़े पर खूरेज़ लड़ाई, कोयते व दीगर हथियारों का आज़ादाना इस्तेमाल, कई अफराद ज़ख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।